Hello, welcome back students. Today we are going to talk about inserting image from internet. So student, suppose you want to insert an image in your presentation, but it is not in your computer. So if you are having an internet connection, you can easily download the image from internet and place inside your presentation. So we are going to see about the steps of how we can insert an image from internet. So in this example, we have taken Swami Vivekananda's image as an example. So we are going to insert Swami Vivekananda image in our presentation. So to insert an image of Swami Vivekananda from internet, follow the given steps. First, open any web browser to search for an image of विवेकानंद. तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स या कोई भी वेब ब्राउज़र जो आपके कंप्यूटर या डिवाइसेस में अवेलेबल है उसमें स्वामी विवेकानंद सर्च करें. वेरियस इमेज विल अपीयर. और ये जो सर्च है वो आप गूगल पे कर सकते हैं, बिंग पे कर सकते हैं, याहू पे कर सकते हैं. आप किसी भी सर्च इंजन पे उस इमेज के लिए सर्च कीजिए. तो या तो जैसे आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो गूगल के सर्च बॉक्स में आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए इमेज ऑफ स्वामी विवेकानंद. और गूगल सर्च जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखिए वेब ऑप्शन आता है, इमेज ऑप्शन आता है, मैप ऑप्शन आता है. तो आप इमेज ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू गो फॉर द विवेकानंद एंड देन प्रेस द सर्च बटन. A lot of image options will appear in front of you. Copy any one of the image of Swami Vivekanand by right clicking on the image and selecting the copy image option from the shortcut menu that appears. तो बहुत सारी इमेजेस आपके सामने आ रही हैं. आप जिस इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन from the context menu. Now go to the slide where you want to paste the image. Right click on the slide and select paste option from the shortcut menu. And alternatively, if you want to copy and paste, you can also use Ctrl C and Ctrl V options. The picture will be pasted on the slide. तो जैसे आपने कॉपी किया और उसके बाद आप डिज़ायर्ड लोकेशन पे आके पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो इमेज आपने कॉपी की थी दैट विल बी प्लेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन. नाउ सपोज यू हैव कॉपीड द इमेज, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके इमेज की जो साइज़ है वो छोटी हो या बड़ी हो. तो वंस यू हैव इंसर्टेड द पिक्चर you can resize it by using the boundary handlers. To resize the picture you required by dragging the handles on the edge of the picture and position the picture properly on the slide as per your requirement. And you can see your image will be placed where you have want or where you have pasted it. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज, एनी इमेज विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, you can just simply copy it and paste it. Alternatively, you can download the image by right clicking on the image in the browser and select the download image option or save image option, and then once it is get saved in your computer, you can insert the image as you have seen in inserting image from the file option. Now next thing is inserting or setting picture or image as watermark. तो watermark आई थिंक आप लोग जानते ही हैं. MS वर्ड में आपको मैंने watermark के बारे में बताया था कि किसी टेक्स्ट को या इमेज को हम अपने बैकग्राउंड में, अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एज अ वाटरमार्क रख सकते हैं.
तो अगर हम किसी पिक्चर को एज अ वाटरमार्क रखना चाहते हैं, देन हाउ वी कैन डू दिस, वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट। अक्सर हम अपने प्रेजेंटेशन में अपने कंपनी के लोगों को, मोनोग्राम को एज अ वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क रखते हैं, जिससे व्यूअर्स को ये पता चले कि दिस पर्टिकुलर presentation belongs to this company. Now see this, watermark in a presentation software is extremely faded image which can be used as background of a slide. When the PowerPoint presentation is posted online, a watermark prevents others from copying the slide. इसको करने के लिए select the design tab and click on the background launcher button. In the background group, format background dialog box appears. So you need to go to the design tab and then go for format background option. ये जो format background dialog box है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। जब हम background color change कर रहे थे तो the same dialog box we are using. Now in the format background dialog box, select the picture or texture fill radio button. It is related property appear in the dialog box. तो अभी आपने देखा था कि जब हम कलर चेंज करते थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, ये सॉलिड फिल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम सेलेक्ट करेंगे पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो जब हम पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे पहले कलर आ रहा था, यहाँ पे टेक्सचर आ जाएगा और इंसर्ट इमेज के लिए आ जाएगा आपका फाइल, क्लिपबोर्ड, क्लिप आर्ट। तो अगर आप किसी पिक्चर को एज अ वाटरमार्क इंसर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट द पिक्चर और टेक्सचर फिल। नाउ क्लिक ऑन द फाइल बटन इन द इंसर्ट फ्रॉम सेक्शन। तो उसके बाद आप फाइल बटन प्रेस करेंगे इंसर्ट सेक्शन में जाके, तो ये फाइल ब्राउज़र ओपन कर देगा जहाँ से आप लोकेशन से फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द डिज़ायर्ड पिक्चर फ्रॉम द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। तो जब आपने फाइल ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ओपन और कैंसिल दो बटन होते हैं। यहाँ पे आपके फोल्डर्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपकी फ़ाइल है वो होगी। तो यहाँ पे आपने अपने इमेज को जहाँ सेव रखा है, जैसे आपने सपोज़ डेस्कटॉप पे इमेज सेव रखा है, तो फर्स्ट यू नीड टू गो टू द डेस्कटॉप एंड देन सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। नाउ द इमेज विल बी available in your presentation. Now you will observe that the selected picture appear as the background on the slide. तो जो आपने पिक्चर सेलेक्ट किया था वो आपके स्लाइड के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अब जैसा कि आपने कलर चेंज करते हुए देखा था कि अगर हम सिंपली कलर चेंज करते हैं तो जो भी इफ़ेक्ट होता है वो केवल एक ही स्लाइड पे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इमेज हमने सेट किया है दैट विल बी अप्लाइड to the current slide which we have selected, but if we want to apply the background or the background image or watermark image to each and every slide of the presentation, so at that time we can click on apply to all button. So you can adjust the transparency of the picture by dragging the transparency slider. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर भी है। ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर उसके फेडेडनेस को मैनेज करेगा। जितना ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट बनाएंगे जो इमेज होगी वो उतनी ज़्यादा फेड हो जाएगी। तो यू कैन यूज़ ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर ईदर टू द लेफ़्ट और टू द राइट। अप्लाई द वाटरमार्क इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लाई टू ऑल बटन है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो चीज़ है वो सारे के सारे स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। एंड फाइनली क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद इस क्लोज बटन पे प्रेस करेंगे, ये जो डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन था ये डायलॉग बॉक्स हमारा क्लोज हो जाएगा एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द पिक्चर इज सेट इन योर बैकग्राउंड। सो आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड इट।
Now moving forward, the next thing is inserting shapes in a slide. तो जैसे आपने पिक्चर्स ऐड किया था वैसे ही आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्लाइड्स में। तो देखो जैसे अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं, जिसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, लाइंस होती हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं एट्सेट्रा, और कुछ प्री डिफाइंड शेप्स भी होती हैं दैट वी कैन इंसर्ट। तो शेप इज़ अ ड्राइंग feature that helps in drawing different shapes. Shapes can be resized, rotated, flipped and colored. To add shapes in a slide, follow the given steps. तो जो शेप हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और शेप्स को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स हम देखने जा रहे हैं, यू हैव टू यूज़ दैट स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, या वो प्रेजेंटेशन आप ओपन करें जिसमें आप शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं। नाउ क्लिक ऑन द शेप बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। जैसे आप इंसर्ट टैब में देखो ये एक शेप बटन है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी जहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स हैं वो आपके अपीयर होंगे। तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू विल डिस्प्ले ऑप्शंस लाइक लाइंस, यहाँ आप देखो लाइंस हैं, दैन रेक्टेंगल्स, अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल्स हैं, दैन बेसिक शेप, बॉक एरो, फ्लो चार्ट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। Now click on any shape you require from the gallery of shape present in the drawing group on the home tab. Click anywhere on the slide and then drag the shape to the place where you want to add it. तो जैसे स्टूडेंट आपको एक रेक्टेंगल बनानी है तो आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ले आओगे, जब आप अपने स्क्रीन पे आए तो वहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन जाएगा। अब प्लस के सिंबल को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो जो रेक्टेंगल है वो आपकी बन जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो ये बादल का चित्र बनाना है, इमेज बनाना है, तो दैट इज़ गिवन इन दिस वन। तो जो लास्ट ऑप्शन है इसमें मिलेगा, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके अगेन यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, तो वो जो इमेज है दैट विल अपीयर ऑन योर स्लाइड। नाउ लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। तो point to the basic shape and move the pointer to the cloud and click on it. The pointer changes to plus sign. तो जैसे आपने क्लाउड साइन पे क्लिक किया एंड देन आप जब आप अपने स्क्रीन पे आओगे तो पॉइंटर चेंजेस टू प्लस साइन। Place the pointer on the slide and drag it to adjust the size of the selected object and shape. The shape will be drawn like this. To resize the shape, select the shape by clicking on it. 8 handles appear on the object. तो जैसे आप किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे, कोई भी जो आपका है ऑब्जेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो 8 हैंडलर्स आएंगे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक यहाँ इसके बीच में, यहाँ बीच में, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इनका यूज़ करके जैसे इस कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, अगर इसको पकड़ के क्लिक करोगे तो ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, अगर आप इसे पकड़ के इधर ड्रैग करोगे तो ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, अगर आप इधर पकड़ के ड्रैग करोगे तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आप इसकी साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। तो 8 हैंडल्स अपीयर ऑन द ऑब्जेक्ट, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑफ द हैंडल्स, द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे कहीं पे भी उस हैंडल पे, जैसे मान लो ये इमेज है, इसके इस हैंडल पे आपने क्लिक किया तो जो पॉइंटर का साइन होगा वो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। नाउ ड्रैग द हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज़। तो आप इसका यूज़ करके जो आपके शेप हैं उनकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. Please try to do it practically in your computer, and in case of any doubt, please feel free to ask. Thank you.